Hello, dear children. Good morning. Today we are going to begin the second part of the lesson Evans tries an O level. The first part we have already completed. So in the first part we saw that the preparation for the examination of Evans O level examinations were going on and all the precautions were being taken. Why were the precautions were being taken? Because Evans had a habit of escaping the jails or breaking the jails. That's why he was popular with the name of Evans the Break amongst his companions and all the jail authorities. So it was 8th of June. The examination was going to commence. All the preparation was taken. Even the invigilator also was searched out. And examination was supposed to be started at 9:15 a.m. but it was already late, and it was 9:25 p.m. and there was a great calm. यानी एग्ज़ाम 9:15 पर शुरू होना था और शुरू कितने बजे हुआ? 9:25 पर. At 9:40 a.m. the examination board rang through and the assistant secretary with the special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. 9:40 पर there was a phone call from the examination board. Some person with the designation of assistant secretary with a special responsibility, he was giving a call and he wanted to ask to governor. The examination had already started, no doubt. He wanted to know means when the examination started, and the governor gave him the information that it started a quarter of an hour ago. Means quarter of an hour ago means 15 minutes before it started. Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place it in the examination package. Very brief. Could the governor please? So actually this call was just to confirm when the examination started, and another purpose was that he wanted to give the correction slip also. The person from the examination board, he wanted to give a correction slip also. There was slight correction in the question paper, so he wanted the permission of the governor. Yes, of course, I will put you straight through Mr. Jackson in Deaving. Hold the line a minute. Or then Mr. Governor gave the line to Mr. Jackson, and now Mr. Jackson was talking to the examination board or secretary. Then an idea or a thought came into the mind of the governor. उसी समय गवर्नर के दिमाग में एक चीज़ आई. Was this the sort of the thing the governor had feared? क्या ये वो चीज़ थी जिसकी गवर्नर को डर था? वॉज द फ़ोन कॉल ए फेक? क्या ये फ़ोन कॉल फेक था? सम सिग्नल? तो ये चीज़ें उसके गवर्नर के दिमाग में आ रही थी, एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. और वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था. सम सीक्रेट मैसेज? क्या इस करेक्शन स्लिप के थ्रू कोई सीक्रेट मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है? बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीजिएटली. लगा ना, ऐसी बात है तो वो इमीजिएटली उसको चेक कर सकता है. ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, और उसने तुरंत एग्जामिनेशन बोर्ड के नंबर डायल किए. बट हर्ड ओनली द स्टेकेटो ब्लीप्स. स्टेकेटो मीन्स कंटिन्यूस जो ब्लीपिंग साउंड आती है, एंगेज फ़ोन होने की साउंड आती है, वो आवाज़ आ रही थी. बट देन द लाइन वाज एंगेज, वाजंट इट? Then he thought the line was engaged means it was a very busy phone. It means to say the phone call was not fake. It was obviously from the examination board. So when this phone call was there, and a thought came into the mind, or what to say, an idea came to his mind. A kind of doubt emerged in his mind. उसके दिमाग में एक doubt emerge हुआ कि ये कहीं फ़ोन कॉल फेक तो नहीं है. Okay, 2 minutes later, 2 मिनट के बाद में he heard some whispered communications in the cell. अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो करेक्शन स्लिप आई थी, क्या फ़ोन से तो आई नहीं थी, हो सकता है फैक्स से आई हो. तो फैक्स से उनको इमीजिएटली डिलीवर हुई और ये फिर उसके बाद में इवांस तक पहुँचाई गई. 2 मिनट बाद में उसने कुछ कम्युनिकेशन साउंड सुनी सेल में. गवर्नर ने व्हाट वाज दिस कम्युनिकेशन साउंड? हु वाज स्पीकिंग? एक्चुअली मैक्लेरी वाज स्पीकिंग. What did he say? Will you please stop writing a V while Mr. Evans and listen carefully? Candidates offering German 0211 should note the following correction. On page 3, line 15, the fourth word should read Goldinin, not Goldin, and the whole phrase will therefore read Zum Goldinin Lowen, not Zum Goldin Lowen. I will repeat that. In that way, Mr. McCleary, who was the invigilator, he was showing the correction. He was telling him the correction, what was the correction in the question paper. The governor listened and smiled.
गवर्नर ने उस आवाज़ को सुना एंड ही वॉज स्माइलिंग बिकॉज ही आल्सो हैड टेकन जर्मन इन द 6th फ्रॉम हिमसेल्फ। उनके पास भी जर्मन लैंग्वेज थी उनके सिलेबस में जब वो 6th क्लास में पढ़ते थे। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कुछ ग्रामर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम थी, एडजेक्टिव्स के एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी। एंड सो डिड मैक्लेरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इम्प्रेसिव एंड ही फाउंड दैट the minister's pronounce, the minister here refers to that same priest, the invigilator Macleary. His pronunciation was very impressive. He was very impressed with the pronunciation of minister, means he was very impressed with the pronunciation of this governor, oh sorry, not governor, Mr. Macleary, who was the invigilator. But what about Evans? He probably did not know what an adjective was. So गवर्नर ये सब बातें अपने दिमाग में सोच रहा है, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। यानी उसने जैसे वो करेक्शन सुना तो उस करेक्शन को सुनकर उसे अपनी क्लास 6 की जर्मन ग्रामर याद आ गई, एडजेक्टिव्स एग्रीमेंट के बारे में याद आया और वो ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि मैक्लेरी का प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा था। देन ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इवांस कि इवांस को तो पता भी नहीं होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। द फोन रैंग अगेन, फ़ोन दोबारा बजा। द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, इस बार मजिस्ट्रेट के कोर्ट से था। What did they need? They needed a prison van. उनको एक prison van की ज़रूरत थी and a couple of prison officers, और कुछ 2 prison officers की ज़रूरत थी। रिमांड केस था कोई। Within 2 minutes the governor was wondering whether that could be a hoax. 2 मिनट के अंदर गवर्नर को ये भी लगा कि ये फ़ोन भी धोखा हो सकता है। He told himself not to be so silly. लेकिन उसने अपने आप को कैसे न कैसे करके एडजस्ट किया कि नो इट्स ओनली हिज इमेजिनेशन, कि ये तो केवल उसकी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एंड ही थॉट हिज इमेजिनेशन वाज बिगिनिंग टू रन रायोट, कि उसकी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो रही है, उसने ऐसा सोचा। इवांस, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर इवांस हैड ड्यूटीफुली पियर्ड थ्रू द पीप होल एट इंटरवल्स ऑफ 1 minute or 2 एंड आफ्टर दैट every 2 minutes। अब इवांस का क्या हाल था वो पता करना चाहता था। तो फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, लगभग 15 मिनट के लिए स्टीफन्स ने बहुत ध्यान से पीप होल में से एक मिनट के अंतराल में और फिर 2 मिनट के अंतराल में लगातार झांक के अंदर देखा कि व्हाट वाज गोइंग ऑन। एट 10:45 AM, 10:45 पर, एवरीथिंग वाज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर। इट टुक 4 or 5 seconds, नो मोर। व्हाट वाज द पॉइंट? इट वाज मोर और लेस द सेम। उसको झांकने में केवल 4 या 5 सेकेंड लगते थे, उससे ज़्यादा नहीं लगते थे। उसमें क्या पॉइंट है? हमेशा वो उसको वही चीज़ दिखाई दे रही थी, तो थोड़ा सा वो भी लेथार्जिक हो रहा था। इवांस, हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवांस का पेन हमेशा उसके लिप्स के बीच में हुआ करता था। सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टूवर्ड्स द डोर, वो लगातार डोर की तरफ देख रहा था। सीकिंग इट सीम्ड सम सॉरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, ऐसा लग रहा था उसे कहीं से बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। ये बच्चे भी एग्जामिनेशन में करते हैं। when they do not have any idea what to write in the answer, they start to look here and there in the air, हवा में इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। The same Evans was doing because he did not know what to do, so he was just looking here and there, and the writer is saying probably he was in the need of some inspiration. And opposite him Macleary, और उसके बिल्कुल अपोजिट मैक्लेरी बैठा हुआ था, seated slightly askew, askew का मतलब तिरछा, वो टेबल से थोड़ा तिरछा बैठा हुआ था। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, उसके फेस का साइड का हिस्सा दिख रहा था। हिज हेयर, एज स्टीफन सेड नोटिस्ड अर्लियर, उसके जो बाल थे वो एमेचुरली क्लिप थे, प्रिटी क्लोज टू द स्काल्प, उसकी खोपड़ी के बिल्कुल पास में क्लिप किए हुए थे। हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेज peering short-sightedly at the church times, and he was reading the newspaper. His eyes were continuously at the church times newspaper. His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, उसकी जो राइट इंडेक्स फिंगर थी वो उसके कॉलर के पास में हुक थी, यानी कि उसने उसको कॉलर को पकड़ रखा था। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, और जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स थी, द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, उसके जो नाखून थे बड़े अच्छे सावधानी से मैनिक्योर किए हुए थे। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और उसने अपनी ब्लैक बियर्ड को ऐसे हल्के से स्ट्रोक करने का मतलब वीव करना या सहलाना। एट 10:50 AM द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ, 10:50 पर एक और फ़ोन आया। एंड द गवर्नर रियलाइज्ड ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस फॉर ए फ्यू मिनट्स, और गवर्नर को ऐसा लगा कि वो इवांस के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया है। इवांस सेज प्लीज़ सर, इवांस अगेन सेज लाउडर प्लीज़ सर,
Would you mind if I put a blanket around me shoulders? It's a bit parky in here, isn't it? Parky का मतलब होता है ठंडा, थोड़ा सा यहाँ ठंडा है. Ivan says there is one on me bunk there, sir. वो मेरी चारपाई पे पड़ा है सर. McClary then gives the permission. Be quick about it. At 10:51 a.m. 10:51 पर Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket wrapped around Ivan's shoulders. 10:45 पर स्टीफन्स ने देखा कि एक ग्रे ब्लैंकेट इवांस के कंधों पर था. एंड ही फ्राउंड स्लाइटली, और थोड़ा सा गुस्सा हुआ. एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली, और उसने जो एग्ज़ाम दे रहा था उसकी तरफ ध्यान से देखा. बट इवांस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, उसने पाया कि इवांस के अभी भी दांतों के बीच में पेन था. एंड ही वाज स्टेयरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर, पहले की तरह ही वो देख रहा था, वैकेंटली यानी हवा में. ब्लैंकली बीनीथ ए ब्लैंकेट, ब्लैंकली का मतलब बिल्कुल ही वॉज लुकिंग एट नो वेयर, यानी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था वो किस चीज़ की तरफ देख रहा था. शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी? देन स्टीफन्स थॉट कि ये थोड़ी सी इरेगुलरिटी है, क्योंकि वो जानता नहीं था कि अंदर उसको मैक्लेरी ने कंबल रखने की परमिशन दे दी है शोल्डर्स के ऊपर. तो इसलिए स्टीफन्स को लगा कि दिस इज़ स्लाइट इरेगुलर. शुड आई नॉट इन्फॉर्म इट अबाउट इट टू स्टीफन्स? एनीथिंग एट ऑल फिशी? फिशी मीन्स कुछ डाउटफुल है. हैडंट जैक्सन सेड? जैक्सन ने क्या नहीं कहा था? ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन. उसने दोबारा पीप होल की तरफ देखा. एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ. और जब वो ऐसा कर रहा था, इवांस ने अपने ब्लैंकेट को थोड़ा सा और ऊपर खींच लिया. वाज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैक्लेरी इन द ब्लैंकेट? तो उसके दिमाग में आया, किसके दिमाग में? स्टीफन्स के दिमाग में, कि क्या वो किसी बैटमैन की तरह जंप लगाएगा और मैक्लेरी को ब्लैंकेट के अंदर सफोकेट कर देगा? वाज दिस द प्लान? डोंट बी डाफ्ट. डाफ्ट मीन्स मैड, पागल होने की जरूरत नहीं. सो दीज वर द थॉट्स गोइंग इन द माइंड ऑफ स्टीफन्स. स्टीफन्स के दिमाग में ये सब विचार चल रहे थे. उसको सिग्नल भी मिल रहा था, लेकिन वो सिग्नल को ओवरलुक कर रहा था अपने ही लॉजिक से. देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन. प्रिजन के साइड में कभी सूरज आता नहीं है. नो हीटिंग, गर्म नहीं होता आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स. एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स. तो हो सकता है कि सेल्स में ठंड लगती हो. Stephens decided to revert to his earlier every minute observation. Then Stephens decided that he would continue his every minute observation and he would not report that particular matter to this Jackson. Jackson को वो रिपोर्ट नहीं करेगा. तो इसका मतलब उनको सिग्नल मिल रहे हैं, स्टीफन्स को सिग्नल मिल रहे हैं, बट सिग्नल को ओवरलुक करके वो अपने ही लॉजिक से उन सिग्नल्स को ओवरलुक कर रहा है. एंड गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. At 11:20 a.m. 11:20 पर द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस. गवर्नर के ऑफिस में दोबारा से रिसीवर बजा. एंड मैक्लेरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 minutes रिमेन. रिसीवर का मतलब जिस रिसीवर से उसको आवाज़ आ रही थी उसमें से गवर्नर के ऑफिस में आवाज़ आई और मैक्लेरी ने इन्फॉर्म किया कि केवल 5 मिनट एग्ज़ाम में बचे थे. द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ. अब एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया. बट समथिंग स्टिल नॉड अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड. लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ थी जो गवर्नर के दिमाग में चल रही थी. ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर. वो एक बार फिर फ़ोन की तरफ गया. एट 11:22 a.m. 11:22 पर जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स. जैक्सन ने स्टीफन्स को तेज़ आवाज़ में बुलाया. द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम. गवर्नर उससे बात करना चाह रहा था. हरी मैन. स्टीफन्स पिक्ड अप द फ़ोन एप्रीहेंसिवली. तो गवर्नर स्टीफन्स से बात करना चाहते थे, इसलिए स्टीफन्स ने अपना फ़ोन उठाया. जो अपना फ़ोन एप्रीहेंसिवली मतलब चिंतापूर्ण तरीके से, मतलब व्हाट वाज द टेंशन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम नाउ. ही लिसन टू द रैपिडली स्पोकन वर्ड्स. गवर्नर गेव हिम सम इंस्ट्रक्शंस एंड दोज इंस्ट्रक्शंस ही listened attentively. Stephen himself was to accompany McClary to the main prison gates. तो व्हाट वाज टोल्ड इन द फ़ोन में क्या बताया गया था कि स्टीफन खुद मैक्लेरी को मेन प्रिजन गेट तक छोड़ कर आएगा. यानी स्टीफन्स को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि मैक्लेरी जो है उसको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में मेन प्रिजन गेट पर वापस छोड़ना है. अंडरस्टूड. स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैक्लेरी हैड लेफ्ट द सेल. स्टीफन्स को ये इंश्योर करना है कि एज सुन एज द एग्जामिनेशन इज़ ओवर और मैक्लेरी वहाँ से चला जाए, उसे इवांस का डोर लॉक करना है. अंडरस्टूड. उसने बार बार पूछा.
At 11:25 a.m. the governor heard the final exchanges. 11:25 पर गवर्नर ने फाइनल आवाज़ें सुनी. वो आवाज़ें क्या थी? मैक्लेरी was saying to Evans, stop writing please, put your sheets in order and see they are correctly numbered. Scrapping of chairs and tables, यानी chairs और tables के खिसकने की आवाज़ आती. Thank you very much sir. मैक्लेरी says all right. Was it? सब कुछ अच्छा था? Evans says not too bad. इतना बुरा नहीं था. Good. मिस्टर स्टीफन्स, मैक्लेरी ने मिस्टर स्टीफन्स को आवाज़ देकर बुलाया. द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंक फॉर द लास्ट टाइम. और फिर गवर्नर ने दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी. द एग्जामिनेशन वाज फाइनली ओवर. सो एज द गवर्नर इंस्ट्रक्टेड हिम, स्टीफन्स वाज सपोज टू एस्कॉर्ट मैक्लेरी टूवर्ड्स द मेन गेट. सो उसको मैक्लेरी को लेकर मेन गेट की तरफ जाने लगा. हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक? asked Stephens as he walked beside McClary to the main gates. उसने पेपर कैसा किया होगा, आपको क्या लगता है? स्टीफन्स ने पूछा. Och, I cannot think he's distinguished himself, I'm afraid. यानी मैक्लेरी ने स्कॉटिश एक्सेंट के अंदर, यानी स्कॉटिश जो प्रोनाउंसिएशन था उसके अंदर बताया कि मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ स्पेशल किया, मुझे डर है. अब किस चीज़ का डर है? कि वो फेल वेल ना हो जाए. तो यहाँ पर स्टीफन्स को थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लगी. क्या चीज़ लगी? एक तो उसका एक्सेंट थोड़ा सा स्कॉटिश था, और उसका लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट जो था, जो उसके नीज पर पहुँच रहा था, वो इस चीज़ का इल्यूज़न मीन्स इस चीज़ का इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा था कि वो बहुत पतला सा हो गया है. कौन? मैक्लेरी. जब मैक्लेरी आया था तो थोड़ा सा हेल्दी था, लेकिन अब थोड़ा सा पतला हो गया, उसको ऐसा लगा. क्यों पतला हुआ है ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा. तो स्टीफन्स को यहाँ भी सिग्नल्स मिले कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन स्टीफन्स ने उसको फिर भी ओवरलुक किया. क्यों ओवरलुक किया? क्योंकि स्टीफन फेल्ट प्लीज्ड. स्टीफन्स को बड़ा खुशी हुई दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन टू सी मैक्लोरी ऑफ द प्रेमिसेस. इन ऑल दैट मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल. स्टीफन बहुत खुश था. क्यों खुश था? कि गवर्नर ने जैक्सन के बजाय उससे कहा है कि मैक्लेरी को छोड़ कर आओ मेन गेट तक, यानी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी है, जबकि जैक्सन उससे सीनियर था. बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी. ही वांटेड टू गो फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी फॉर विच ही वॉज ऑलरेडी लेट. लेकिन जाने से पहले वो फिर भी उसके दिमाग में कुछ चीज़ आई. वॉट वॉज दैट थिंग? ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस. वो इवांस की तरफ एक बार और देखना चाहता था. इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी. उसके दिमाग में एक प्रोग्राम टीवी पर जो आता था वो चल रहा था, अबाउट ए वुमन, एक औरत के बारे में, हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर. जो अपने आप को कभी भी कन्विंस नहीं कर पाई कि उसने फ्रंट डोर को लॉक कर दिया है बेड पर जाने से पहले. ऑफन शी वुड गॉट अप 12, 15, समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बोल्स. वो कभी कभी तो 12-15 बार भी आकर बोल्स को. तो उसने सोचा कि चलो एक बार और उसी वुमन की तरह एक बार फिर से इवांस को चेक कर लिया जाए. ही री एंटर्ड डी विंग. वो डी विंग में गया. मेड हिज वे अलोंग टू द इवांस सेल एंड ओपन द पीप होल वंस मोर. एंड व्हाट डिड ही फाइंड देयर? ओ नो, क्राइस्ट नो. देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवांस चेयर वॉज ए मैन. इवांस की चेयर में एक आदमी पीछे की तरफ, स्प्रॉल का मतलब ऐसे साइड में कुर्सी के बल पे झुका हुआ था. अ सेमी सेकेंड, एक सेकेंड के लिए स्टीफन्स ने क्या सोचा कि ये खुद इवांस ही है. अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर. एक ब्लैंकेट जो उसके शोल्डर से नीचे खिसक रहा था. द फ्रंट ऑफ द हिज क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलरली टफ्ड हेयर अवॉश विथ फियर्स रेड ब्लड. उसके जो क्लोजली क्रॉप्ड का मतलब जो बहुत पास से काटे गए, बहुत बारीक कटे हुए बाल जो थे वो रेड ब्लड से, फियर्स खतरनाक रेड ब्लड से भरे हुए थे. विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड. और उसके ब्लैक बियर्ड के आसपास भी खून टपक रहा था. एंड वाज नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लैरिकल कॉलर. और उसके कॉलर के पास में भी खून बिखरा हुआ था. एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट. स्टीफन्स शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन. स्टीफन्स उसी समय जैक्सन के लिए जोर से चिल्लाया. एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनेट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैक्लेरीज ईयर. और वो वर्ड्स मैक्लेरी के कान में भी सुनाई दिए. तो अभी क्या सोचा जा रहा है? अभी ये सोचा जा रहा है कि जो अंदर आदमी पड़ा हुआ है वो मैक्लेरी है, और मैक्लेरी को घायल करके इवांस वहाँ से भाग गया है, जिसको वो ये स्टीफन्स खुद बाहर छोड़कर आया है. उनको ऐसा लग रहा है कि मैक्लेरी अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए वो उसको मिनिस्टर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं. फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर ए हैंकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट.
और फिर उसने मैक्लेरी ने अपने पैकेट में से हैंकरचीफ निकाला एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, अपने ब्लीडिंग हेड पर लगाया। द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन, और उसके वाइट लिनन कपड़ों पर खून फैल रहा था। ही गेव ए लॉन्ग लो मोन, वो धीरे धीरे हल्के हल्के चिल्ला रहा था। एंड ट्राइड टू स्पीक बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, और जब तक जैक्सन आया एंड डिस्पेस्ड स्टीफन्स, और उसने स्टीफन्स को पुलिस बुलाने के लिए भेजा। एंड द एम्बुलेंस द हैंकरचीफ वाज ए स्टिकी स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, जो उसका हैंकरचीफ था वो पूरी तरह से चिपका हुआ सा एक कपड़ा बन गया था खून के कारण। मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैक्लेरी ने धीरे से अपने आप को उठाया। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विथ पेन, उसका जो फेस था वो दर्द के मारे थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा था। Do not worry about the ambulance man. I'm right. I'm all right. Get the police. I know where he closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. उसने अपनी आंखें बंद की और पानी का ब्लड का एक और जो धब्बा था वो नीचे की तरफ गिरा। His hand felt along the table, found the German question paper. उसने अपने हाथों से जर्मन क्वेश्चन पेपर हाथ में लिया and grasped it tightly in his blood-stained hand, और अपने खून से सने हुए हाथों में उस क्वेश्चन पेपर को आगे किया। गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवांस, गवर्नर को बुलाओ, मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया है। ऑलमोस्ट इमीजिएटली सायरन्स वर साउंडिंग, उसी समय सायरन के तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। प्रिजन ऑफिसर बार्क्ड ऑर्डर्स, प्रिजन ऑफिसर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे। पजल्ड प्रिजनर्स पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, और जो दूसरे प्रिजनर्स थे वो कॉरिडोर्स के पास आ गए थे। डोर्स वर बैंग, दरवाजे बंद कर दिए गए, बोल्ट कर दिए गए। फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, सब तरफ फ़ोन के बजने की आवाज़ आ रही थी। एंड विद इन अ मिनट मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड, हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड। एक ही मिनट में मैक्लेरी को जैक्सन और स्टीफन्स बाहर लेकर आए। अब उसका चेहरा पूरी तरह से, चेहरे पर जो खून था वो सूख चुका था। वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाई द गवर्नर परप्लेक्स्ड विद ग्रिम, गवर्नर ने उसको ग्रीट किया जो कि बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। ही वॉज परप्लेक्स्ड, ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड एंड ग्रिम मीन्स सीरियस। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीजिएटली, आई जस्ट डोंट। और गवर्नर ने क्या कहा कि हम आपको सीधे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसने इसके जवाब में मैक्लेरी ने क्या कहा, यी हैव कॉल्ड द पुलिस, तुमने पुलिस को बुलाया? यस दे आर ऑन द वे। आई एम ऑल राइट, लुक हियर। awkwardly he opened a German question paper and thrust it before the governor's face. उसने उसी समय वो क्वेश्चन पेपर खोला और गवर्नर के चेहरे के सामने की तरफ उसे ले गया। इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन, वो यहाँ पर है, यहाँ पर गया। द गवर्नर लुक्ड डाउन, गवर्नर ने देखा एंड रियलाइज्ड व्हाट मैक्लेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, और रियलाइज़ किया कि मैक्लेरी उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। यानी उस क्वेश्चन पेपर में कुछ चीज़ थी जिससे उसको इवांस को भागने में मदद मिली। अ फोटोकॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरइम्पोज्ड ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। एक कोई फोटोकॉपीड शीट थी, वो बड़े चतुराई से और बड़े सावधानी से लास्ट पेज जो था क्वेश्चन पेपर का, उसके ऊपर सुपर इम्पोज का मतलब उसके ऊपर चिपका दी गई थी। तो अभी तक ये लोग क्या समझ रहे हैं? अभी तक ये लोग ये समझ रहे हैं कि जो बंदा पहले गया है वो व्यक्ति इवांस है, जिसे स्टीफन्स खुद छोड़कर आया है, और ये जो अंदर बैठा हुआ है ये बंदा मैक्लेरी है जो कि इन्विजिलेटर है। तो इवांस मैक्लेरी इन्विजिलेटर को घायल करके वहाँ से भाग गया है। सो अब इसमें आगे जाकर क्या निकलता है, दिस वी विल सी इन द थर्ड पार्ट, ये हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।